Hello everyone. Today we'll learn about personal finance. So we'll learn personal finance meaning and everything about personal finance. Okay, the concepts used and what exactly the knowledge should be available with a person. Everything we are going to learn. First of all, notice that. Let's learn that personal finance is a concept that every person should know. It's not necessary that the person should be from commerce background. Okay, a person from arts background, person from science background, everyone should learn. Okay, even if the person is not from any background, if the person is studying in school, or if he or she is uneducated, still he or she should know the knowledge. Okay, so I'm going to make a playlist of this personal finance. So please refer to the playlist. Okay, today will be the first video. So let's start. So introduction to personal finance. First of all, what is personal finance? So personal means me myself. Okay, so the finance that I should, the knowledge that I should have. Okay, and what is finance? The money. Okay, so everything, all the knowledge regarding the money, that my money. Okay, all the knowledge about my money should be known. Okay, they here businesses are not included. Okay, so now let's start. What is the importance of managing personal finance? So personal finance, you have to manage your money. Okay, you should not have overly expenses, or overly saving is also not good. Okay, because the time when you want money, that saving, if you have done it overly, तो you will not be able to use that, because सेविंग ज़्यादा किया तो हम लोग का कुछ सेविंग्स करने के लिए कुछ तो पर्पस रहता है, बराबर। मुझे घर लेना है, मुझे ज़मीन लेनी है, ये लेना है, वो लेना है। तो अगर मैंने ज़्यादा सेविंग्स किया, ज़रूरत से ज़्यादा, लाइक इफ आई सेव 10 lakhs इंस्टेड ऑफ रुपीज 1 lakhs, हाँ, तो ऊपर का जो 9 लाख रहता है ना, वो मुझे यूज नहीं करना आता है, बिकॉज व्हाट आई हैव डिसाइडेड, मैं इसमें से जमीन लूंगी। तो मेरा उसमें ना सोल अटका अटका रहता है। ओके, सो overly expenses are also not good, over savings are also not good. Okay, everything should be just right. So what is the importance of managing personal finance? So the first point is budgeting. So what is a budget? First of all, it is a planning of what are the expenses, what are the incomes. Okay, मतलब अभी तक हुआ नहीं है एक्सपेंसेस इनकम्स, बट यू आर प्लानिंग। ओके, इतना ही खर्चा करूंगी, इतना मुझे एक्सपेंसेस इनकम आएगा। ओके, सो दैट बजट ईच पर्सन शुड मेक। ओके, अपना कंट्री खुद करता है, एंड दैट इन इंडिया ईच ईयर ऑन 1st February दिस बजट इज पब्लिश्ड। ओके, तो जो फाइनेंस मिनिस्टर जो रहते हैं, दैट फाइनेंस मिनिस्टर पब्लिशेस द इंफॉर्मेशन. So budgeting is not only important in one country, it's not only important in an organization, but it's important in our personal household life also. Okay, मतलब मुझे सब्जी कितना लेनी है, मुझे कौन से बैंक में इन्वेस्ट करना है, 5,000 भी रहेंगे तो भी मुझे इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, तो वो कौन से बैंक में करना है, मुझे मेरे एजुकेशन कौन से कॉलेज में लेना है, एवरीथिंग. Okay, so that everything will come in budgeting. Second point, second importance is achieving goals. So why is personal finance, managing personal finance important? Is I am able to achieve my goals. Goals मतलब financial goals ज़्यादा कर रहते हैं, मतलब मुझे ये लेना है, मुझे वो लेना है. Okay, but other goals are also involved. Okay, I want to buy a refrigerator, I want to take education, I want to buy property, everything. So all those goals I am able to achieve just because of managing personal finance. Third point is avoiding debt. अगर मैंने बराबर से मैनेज किया है मेरा पर्सनल फाइनेंस, तो मुझे पता है मैं किधर खर्चा करना चाहती हूँ, किधर नहीं करना चाहती हूँ, मुझे कितना पैसा चाहिए, क्या करना है मुझे वो पैसे से, एवरीथिंग आई नो. सो
आई कैन वेरी इजीली अवॉइड द डेट्स. ओके, मतलब मुझे बिना वजह लोन नहीं लेना पड़ता है. अगर लेना भी पड़ा तो भी आई नो कि कब पे करना है, कितना पे करना है, एवरीथिंग. फोर्थ पॉइंट इज बीइंग टैक्स एफिशिएंट. मेरा पैसा मुझे पता है कितना है, किधर है. ओके, सो आई एम एबल टू पे माई टैक्सेस एफिशिएंटली. मतलब ऐसा नहीं कि मुझे अरे पता ही नहीं है, मेरा 1 लाख रुपए ना दूसरी जगह था, मैंने दूसरे बैंक में रखा था, मुझे पता नहीं था, मैं रख के भूल गई थी. तो अगर मैंने उस पर टैक्स नहीं भरा तो वो ब्लैक मनी हो जाएगा, फिर ईडी लग जाएगा मेरे पीछे. तो आई कैन अवॉइड ऑल दैट. Next is making informed decisions. Whatever decisions I want to take, I know. Okay, मुझे घर लेना है, मैंने किया. मैंने जमीन लेना है, मैं जमीन ले सकती हूँ. Everything I know. Okay, ये सब प्री प्लान था. Okay. Next is saving money. As I said, saving money is very important. Okay, but वो भी ना कम नहीं होना चाहिए या फिर ज्यादा भी नहीं होना चाहिए. It just should be the right amount. नेक्स्ट इज वेल्थ अक्यूमुलेशन. अभी ऑफकोर्स सेविंग मनी किया, मनी सेव किया, तो मेरा वेल्थ जो है, मतलब मेरा जो पैसा है, दैट कैन बी अक्यूमुलेटेड. ओके, अक्यूमुलेटेड मतलब इट ऑल कम्स टुगेदर. मतलब मैं उसका एक पूरा बुक मतलब अपना जो रिकॉर्डिंग रहता है वो पूरा मैं कर सकती हूँ ठीक से. ओके, सो वेल्थ अक्यूमुलेशन, जो भी है मेरा पैसा एक जगह पे जमा हो जाएगा. इन्वेस्ट फॉर द फ्यूचर. नाउ आई नो व्हाट आई वांट, व्हाट आर माय गोल्स इन द लाइफ, सो आई नो वेयर टू इन्वेस्ट. ओके, तो इन्वेस्टमेंट फॉर द फ्यूचर. मुझे घर लेना है, मैं अभी से स्टार्ट करूंगी इन्वेस्ट करने के लिए. ओके, उसमें से जो भी पैसा मिलेगा वो सब पैसा मैं घर खरीदने में लगाऊंगी. एंड लास्ट वन इज रिड्यूस स्ट्रेस. ऑफकोर्स आपके पास पैसा रहेगा, वो सब किधर लगाना है, क्या है, आपको सब पता रहेगा, तो स्ट्रेस नाम की कोई चीज ही नहीं रहेगी. ओके, सो reduce stress. Okay, so this was the importance. Now there are some concepts that you need to know as an individual who lives in a society. आपको खर्चा पानी करना रहता है, तो वो concepts very important. Okay, so let's learn about those concepts. Now there are many concepts, but the basic concepts I'm going to tell you. So budgeting basics. So what are the important concepts in budgeting? First is income. So whatever I earn is my income. Money received regularly. तो मेरा salary, interest, dividend. What is salary? आपको पता है, तनख्वाह. तो मैं जॉब करती हूँ, मुझे उधर से पैसा मिलता है, that is my salary. इंटरेस्ट, मैं आई इन्वेस्ट इन डिबेंचर्स. ओके, तो उधर से मुझे इंटरेस्ट मिलेगा. मैं बॉन्ड्स खरीदती हूँ तो बॉन्ड्स में से मुझे इंटरेस्ट मिलेगा. डिविडेंड, शेयर्स लेती हूँ तो शेयर्स में से मुझे डिविडेंड मिलेगा. ऑल दैट इज नोन एज इनकम. ओके, इफ आई एम एन एजेंट, तो एजेंट को क्या मिलता है? कमीशन. So that commission is also known as income because I receive it, right? Then expenses are there. Expenses are money spent for particular purpose. So मैं जो भी खर्चा करूंगी वो खर्चे को मैं बोलूंगी expenses. So examples, spendings to buy grocery. मुझे सब्जी खरीदनी थी, मैंने उधर पैसा दिया, तो that is my expenses. Okay, savings. मेरा जो भी पैसा बचेगा लास्ट में. ओके, रिमेनिंग मनी दैट कैन बी यूज्ड फॉर फ्यूचर. आई कैन यूज दैट रिमेनिंग मनी फॉर माय फ्यूचर. ओके, अभी मेरे पास 50,000 थे, उसमें से मैंने 40,000 रुपया स्पेंड कर दिया, मेरा बचा 10,000 रुपीज. सो दैट 10,000 रुपीज आर माई सेविंग्स. ओके, दैट 10,000 रुपीज आई कैन यूज फॉर माई फ्यूचर future use. Okay, future purposes. Or it has a formula, income minus expenses. As I said, 50,000 में से 40,000 माइनस किया. 50,000 मेरा इनकम था. ओके, और 40,000 मेरा एक्सपेंसेस था, बचा 10,000. 10,000 will be my savings. Income minus expenses. Okay, next concept is
assets. So assets are long term ownership. Long term matlab more than 1 year. Okay. So whatever I own for long term are my assets. Not only long term, short term भी आता है इसमें, but I should own that. Okay. So that is known as assets. एग्जाम्पल हाउस, लैंड, मशीनरी एक्सेट्रा. ये मैंने मेरे पैसे से खरीदा है. सब जो भी कागज है, ऑल द प्रॉपर्टी पेपर्स, एवरीथिंग वो मेरे नाम पे है, तो वो मेरे असेट्स है. ओके. लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म ओविंग्स. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस नो द मीनिंग ऑफ लायबिलिटीज. Liabilities is a state of being responsible. Okay, I have taken a loan from a bank. Okay, XYZ bank, and I have to pay the loan back. Okay, so I am liable to pay the loan. So that is known as liabilities. Why liabilities? Because I am responsible. That is my responsibility to pay the loan back. So another word for responsibility is liability. Okay. So in accounts, in personal finance, what is liability? Liability is long term owings, whatever I owe to others, जो मुझे दूसरों को देना है. Okay. Suppose I go in a shop, I buy goods, and I realize कि अरे पैसा कम पड़ रहा है मुझे, तो I tell the shopkeeper कि I will pay you later. So I am liable to pay the money back to the shopkeeper. Okay, so that is my liability. Cost of money भी होता है उसको, मतलब whatever I bought vegetables, तो cost of money. Okay, तो vegetables का cost क्या था? वो money था. Okay, 100 रुपए की सब्जी लेगी तो 100 रुपए का मेरा liability है. Okay, example payment of loans. तो एज आई सेड, बैंक में से लोन लिया, लोन मुझे पे करना है, सो दैट इज लायबिलिटी. ओके. ईएमआई, अभी ईएमआई में थोड़ी देर में बताती हूँ आपको. ओके, एग्जैक्टली क्या रहता है वो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू इन द लेटर वीडियोस. ओके, बट फिलहाल आई गिव यू अ ब्रीफ आइडिया. ओके. नेक्स्ट कंसेप्ट इज इन्वेस्टमेंट्स. In what are investments? Act of putting money in a bank, business or property, etc. for future goals. Okay, so I invest my money. I put my money in a bank. I put my money in a business, that is capital, and I buy property. So everything is my investment. Why? Because I have some future goal. Okay, कि अगर मैंने घर लिया तो वो घर में मुझे रहना है. अगर मैंने बिजनेस में इन्वेस्ट किया, दैट इज नोन एज कैपिटल, तो आई वांट माय बिजनेस टू ग्रो. इफ आई इन्वेस्ट माय मनी इन अ बैंक, तो वो पैसा जो भी मैंने समझो 50,000 रुपया रखा था, उसमें से इंटरेस्ट मुझे जो भी मिलेगा वो पैसा अक्यूमुलेट हो जाएगा, कल को 1,00,000 रुपया हो जाएगा. सो दैट 1,00,000 रुपया उसमें से आई विल हैव यूटिलिटी, मीनिंग सेटिस्फैक्शन. तो वो इन्वेस्टमेंट इट हैज सम गोल. ओके, किधर भी इन्वेस्ट करो, कितना भी करो, बट उसमें से आपको कुछ फायदा होने रहता है, कुछ तो आपका गोल रहता है. यू हैव सम पर्पस, सो दैट इज नोन एज इन्वेस्टमेंट. ओके, सो दैट इज ऑल. Okay, now let me tell you the meaning of EMI as I told you earlier. Now what is EMI? First of all, it is a short form used for equated monthly installments. So नाम से ही आपको पता चल रहा है कि इक्वल अमाउंट रहता है. इक्वेटेड मतलब इक्वल अमाउंट. ओके, सेम अमाउंट. ये महीने में 10,000, वो महीने में 10,000, तीसरे महीने में 10,000. ओके, वो कम ज्यादा नहीं होगा. मंथली मतलब every month I have to pay. EMI is not yearly, it is monthly. Okay, जनवरी, फरवरी, मार्च, ऐसा हर महीने भरना पड़ता है. इंस्टॉलमेंट मतलब थोड़ा थोड़ा करके. मतलब अभी मैंने कार खरीदा 10 लाख का, तो अभी मेरे पास पैसा नहीं था. ओके, तो आई टेल द सर्विस प्रोवाइडर जो जिससे मैंने कार खरीदी कि मेरे पास अभी पैसा इतना सारा नहीं है, 10 लाख नहीं है, बट मुझे कार अभी चाहिए. Okay, so what he will tell me, he or she will tell me
कि 5% का आपको इंटरेस्ट लगेगा और 10 महीने तक आपको पैसा भरना है। ओके, तो हाउ विल आई कैलकुलेट EMI? तो 10 लाख तो पैसा भरना ही है मुझे, उस पर तो अभी इंटरेस्ट भरना पड़ेगा क्योंकि वो सर्विस प्रोवाइडर का नुकसान हो रहा है। नाउ लेट मी टेल यू हाउ। मैंने अभी 10 लाख रुपए उसको दिए अगर, तो वो 10 लाख रुपए उसको अभी मिलेगा। ओके, बट वही 10 लाख रुपए अगर इट्स गेटिंग डिस्ट्रीब्यूटेड, अगर मैं हर महीने थोड़ा थोड़ा करके दे रही हूँ, तो उसको अगर जो भी खर्चा करना था वो उसका नुकसान हो जाएगा, वो अभी कर नहीं पाएगा, तो उसके लिए कॉम्पेंसेशन तो मांगेगा वो। तो वो कॉम्पेंसेशन को नया नाम दिया है इन्होंने, थोड़ा फ्लावरी लग रहा है हम लोग को, इंटरेस्ट। तो वो दैट इंटरेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कॉम्पेंसेशन रहता है एक तौर का, ओके, बिकॉज यू आर पेइंग द मनी लेट। हाँ, तो अभी EMI करते कैसे हैं कैलकुलेट। 10 लाख का अमाउंट था, वो 10 लाख तो देना है, कॉम्पेंसेशन दैट इज इंटरेस्ट भी देना है। ओके, तो 10 लाख पहले कितने हर महीने कितने भरने हैं वो हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो 10 महीने का उसने बोला है, तो 10 महीने डिवाइड करने का, 10 लाख डिवाइड बाय 10 मंथ्स इज इक्वल टू 1 लाख। सो 1 लाख रुपए हर महीने तो देना ही है मुझे। और उसने इंटरेस्ट रेट कितना बोला, मतलब मेरा कॉम्पेंसेशन रेट कितना बोला, 5%। तो 5% जो भी है वो 5% 10 लाख पे नहीं कैलकुलेट करने का, 1 लाख पे करने का। मतलब एट द एंड ऑफ 10 मंथ्स जब भी मैं पूरा 10 लाख कंप्लीट कर दूंगी पे करके उसको, तभी वो जो 5% आएगा ना, वो 10 लाख पे 5% टोटल आएगा। तो हर महीने मुझे 1 लाख पे 5% निकालना है। मतलब 1 लाख पे मेरा 5% आता है 5,000। 5,000 10 महीने दिए मैंने तो 50,000 हो जाते हैं। और 10 लाख पे 5% जो मेरा अक्यूमुलेटेड अमाउंट रहेगा, एंड टोटल रहेगा, उस पर भी 50,000 रहते हैं। ओके, तो अभी आपको आपने अगर कार सर्विस प्रोवाइडर उसको अभी 50,000 दिया, अगले महीने 50,000 दिया, आप लोग 5 लाख दे रहे हैं उसको, मतलब 4,50,000 ज्यादा दे रहे हैं। ओके, सो प्लीज नोटिस दैट ये जो 10 लाख है ना, वो आपकी एंड अमाउंट है, और आपका जो इंटरेस्ट रहेगा ना, वो भी आपको मतलब इस पे निकालेंगे तो वो एंड अमाउंट का इंटरेस्ट रहेगा, एंड में जो इंटरेस्ट रहेगा ना वो अमाउंट आएगा। ओके, 10 लाख पे निकाला तो ऐसे आपको 10 महीने पे करना है, इसलिए वो डिवाइड करने का विद 10 मंथ्स। ओके, मतलब 10 लाख मैं 1 लाख दिया हर महीने, उस पे 5% दिया, मतलब 5,000 दिया, मेरा टोटल हो जाएगा 1,05,000। ओके, so this is the amount that I have to pay each month, 1,05,000 every month I have to pay, ताकि एंड में मेरा 10,50,000 होगा। ओके, 10 लाख तो मेरा ऑलरेडी था, 50,000 का इंटरेस्ट, समझे। ओके, सो दिस इज EMI। ओके, ये हर महीने मुझे भरना है, और जो 50,000 मैंने बोला इस पे अगर गलती से निकाला तो वो 50,000 आपका एंड अमाउंट होना चाहिए। ओके, नहीं तो हर महीने 50,000 भरते रहोगे, 4,50,000 आप लोग ज्यादा दे रहे हो। ओके, उसमें आपका ही नुकसान है, आपको भरना है तो भरो, बट वी हैव टू एंश्योर कि ये 10 लाख आपको एंड अमाउंट आनी चाहिए। उस पर जो इंटरेस्ट रहता है 5%, मतलब 50,000, वो भी एंड अमाउंट है। तो एंड अमाउंट आपका ऐड करो, 10 लाख और 50,000 ऐड करो, 10,50,000 आपका एंड अमाउंट आना चाहिए। ओके, और 10 महीने का टाइम दिया है, तो हर महीने आप लोग को 1,05,000 निकालना है। ओके, थोड़ा लॉन्ग कट मैंने इसमें बताया है कि 10 लाख पे पहले निकालो, उसके बाद वो 1 लाख जब भी आएगा तभी उस पे 5% निकालो, तो आपको आता है 1,05,000। ओके, तो टोटल में एंड अमाउंट कितने आएंगे, 10,50,000 वही आएगा सेम। अभी यू अकॉर्डिंग टू योर नॉलेज आप लोग कैलकुलेट करो, आप लोग को शॉर्टकट यूज करने में ज्यादा अच्छा लगेगा, मतलब इजी जाएगा, या फिर ऐसे थोड़ा लॉन्ग कट होगा फिर भी ऐसे इजी जा रहा है तो ऐसे करो। ओके, आई हैव एक्सप्लेन यू बोथ वेज, बट आपका एंड अमाउंट 10,50,000 आना चाहिए। ओके, so I hope you all have understood. By the way, I'm teaching this EMI in the next videos also.
ओके, तो अभी नहीं समझ में आया रहेगा तो भी चलेगा। ओके, आपको अभी चाहिए होगा तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हो मुझे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।